Well, all of you, beginning with where we paused in the yesterday's session, we are learning continent of Europe, and we want to take up possibly the completion of it today. We have decided it to take on the regional domain. We know that in Africa, the regional domain absolutely falls into the environmental region that we don't have in Europe. But there has to be some logic with which I revise the things, and it is retained right here. So, Western, I don't want to get onto any sort of repetition mode. I just zoom up this part. After taking up Iberian, British Isles, and Nordic or Scandinavian states, we want to travel towards east. And yes, as some of you have asked me, so I just want to enlarge that part. So let me just focus on this particular location. Be very clear, I just want to remove this because we are done with it and it is going to just create trouble in our building up the information further. So let me just highlight it with black. We talked about two rivers yesterday and yes, you are correct. जब हम इस river को pick up कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से, ध्यान से देखेंगे. When I am picking up this river from Switzerland, this river is traversing via a freshwater lake sourced and also river sourced lake. अपने मैप में देखना, you are likely to have its name. It is called Lake Constance. बड़ा interesting नाम है इसका. Lake Constance is on River Rhine, or Lake Constance is right there at international boundary between Germany and Switzerland. यहीं पर हमने आपको रिवर राइन का बाउंड्री बनाया था. देन रिवर राइन ड्रॉज द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी, वेयर आई टॉक्ड अबाउट द ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स एंड हैव इट्स डेल्टा इन नीदरलैंड्स. न्यू मैप ऑफ इंटरनेशनल रिवर हैज बीन रिलीज. तो ये इंटरनेशनल रिवर्स अपने आप से थोड़े से इंपॉर्टेंट हो गए. रिविजन में इनका थोड़ा सा ध्यान रखना. मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसानी से सॉल्व होगा. और जब हम दूसरा रिवर के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में भी कल बात करी थी, एंड आई हैव जिनीवा, बहुत पॉपुलर सिटी है. तो ये लेक तो अपने आप ही डिफाइन हो गया ना, लेक जिनीवा है. दिस इज रिवर रोन. रोन रिवर भी इंटरनेशनल बाउंड्री ड्रॉ कर रहा है क्या? रोन रिवर इंटरनेशनल बाउंड्री ड्रॉ करता है, बहुत छोटा सा, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में. एंड इट हैज लेक जिनीवा ऑन इट. अच्छा, अब जैसे ही हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं and I want to travel further south, तो लेक जिनीवा भी आपको बता दिया, लेक कॉन्स्टेंस भी बता दिया, राइन भी हो गया, रोन रिवर भी हो गया. अब जरा ध्यान से देखेंगे. Alps draws international boundary between Switzerland and Italy, and I take that support and enter Italy. As I enter Italy, what I'm noticing is that Italy has got the most prominent river, River Po. Notice कर लेंगे इसको. The river Po is traversing from, it rises from Alpine mountain and take up its move towards Adriatic Sea. When I take river Po, it's very small river on the map of world, agreed, but it is just like river Rhine, experiencing extreme decline in its water volume. I talked about Rhine specifically. When I try to apply Italian physiographic domain beyond, you need to understand that this river on the banks of which you are taking Vatican and Rome, ये भी एक अच्छी important river है. इसका जो mouth है, that you can easily see is related to, I'll just write the name. पहले हम river का नाम लिख दे. This is river Tiber, T-B-E-R. Note it carefully. ना तो Po ना Tiber face value पर international streams हैं. But जैसे ही आप वेटिकन को recognize करते हो as a city country, you have to understand that Tiber can also be incorporated into the international river domain. So ये वाली चीजें थोड़ा सा cautiously handle करना जरूरी है, नहीं तो it becomes troubling task later. अब yesterday we talked about that Corsica is the island that belongs to France. So ये वाला island हमारा study में आ गया था. Now I want to take up the other island. So this is my island one. नाम लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. सार्डिनिया. This is my island number 2, Sicily, and this is my peninsula. इन सबको combine कर दीजिए. This is the territorial stretch of Italy. This peninsula is called Apennines Peninsula, and Apennines Peninsula is equal to Apennines Mountains, which is Youngfold Mountain of Alpine Cordillera.
इसके अलावा अगर आपको कुछ लोकेशनल फैक्ट्स जज करने हैं तो बहुत ध्यान से देखते जाएंगे। बिटवीन कोर्सिका एंड सार्डिनिया it is strait of Bonifacio Strait of Bonifacio is separating Corsica and Sardinia. Strait of Bonifacio is connecting Mediterranean Sea from Tyrrhenian Sea. Can you locate Tyrrhenian Sea in your school atlases? So Tiber river जो है उसका माउथ मेडिटेरेनियन सी गलत नहीं है, लेकिन मोर करेक्ट आंसर इज Tyrrhenian Sea. So Bonifacio Strait, consider the following pairs, which of them are correct? इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए. When I take up the reference of Bonifacio Strait, it is connecting Mediterranean and Tyrrhenian Sea. बिल्कुल वैसे ही ये स्ट्रेट है. अच्छा, इसमें हम नाम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा और जूम अप कर देते हैं. आप ध्यान से देख लीजिए, मेसिना एज अ सिटी दिखाई दे रहा है. तो सिसिली द आइलैंड is separated from Epines the peninsula by Strait of Messina. Strait of Messina very clearly is giving you the demarcation of that city located right there in Epines Peninsula. So you can identify it as Strait of Messina because of that city. So it becomes easier. अच्छा, इसके बाद अगर हम थोड़ा सा साउथ में जाते हैं, ये आपको एक कंट्री दिखाई दे रही है, माल्टा. इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इसको एक स्टार मार्क के साथ अलग छोड़ देते हैं. Epines Peninsula do have its touching reference with this peninsula, which I'll be highlighting just in a while. इसलिए हम पहले तो इसको डिमार्केट कर देते हैं, और इसको डिमार्केट करते समय आपको दो नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. दिस इज ओटरांटो, ठीक है. स्ट्रेट ऑफ स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो. जब आप स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो की बात करते हो तो यू आर टेकिंग अप द डिमार्केशन ऑफ एड्रियाटिक सी फ्रॉम, आई एम राइटिंग आयोनियन सी. आई होप यू आर नोटिसिंग इट. बड़ा पॉपुलर है, ऑलमोस्ट सब स्कूल एटलसेस में अवेलेबल है. सो एड्रियाटिक सी एंड आयोनियन सी इज बीन कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ऑफ ओटरांटो. एंड व्हेन आई टेक अप रेफरेंस ऑफ स्ट्रेट ऑफ मेसिना, it is separating out Epines Peninsula from Sicily Island, which is also Italian island. अच्छा, इसी के कंटिन्यूटी में अपने आप को दो चीजों का डिमार्केशन दे दीजिए. आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इजी. आपको जब टोरंटो भी पता चल गया और मेसिना भी पता चल गया, तो आई थिंक इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कि ये दो जो प्रोजेक्टिंग पेनिनसुलाज हैं, इनका नाम ओटरांटो पेनिनसुला एंड मेसिना पेनिनसुला क्यों होना चाहिए. Epines Peninsula is in Italy. बहुत आसान है, बहुत पॉपुलर है, बहुत फेमिलियर है. But you need to understand that Otranto and Messina Peninsula are the extension of Epines Peninsula. पहली बात. और दूसरी बात, ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पर गल्फ ऑफ. अब ये नाम इतने सारे रिदमिक लगते हैं ना, कि ऐसा लगता है चेंज कर दे. टेरेंटो गल्फ, नॉट ओटरांटो, इट्स टेरेंटो गल्फ. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डोमेन है जो आपकी नॉलेज में होने चाहिए. मेडिटेरेनियन सी का भी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का मॉडरेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आईपीसीसी के असेसमेंट से रिकॉग्निशन है. मेडिटेरेनियन सी से रिलेटेड प्लेसेस automatically become significant much beyond just the Aegean island dispute. That is definitely an overcasting influence on this region as of today. अभी पहुंच रहे हैं वहां पर. So the marginal waters that demarcates Epines Peninsula will be Tyrrhenian Sea, Adriatic Sea, Ionian Sea, and definitely when I take up the reference of its projecting minor peninsulas, I can easily apply on the two straits that we have taken. One is Strait of Messina and one is Strait of Otranto. गल्फ का नाम है टेरेंटो. सो इसको कंफ्यूज नहीं करना है. पो रिवर भी बता दिया, तिबर रिवर भी बता दिया. अब बहुत ध्यान से देखेंगे. आई वॉन्ट टू गेट ऑन टू दिस. पहले डिमार्केट आउट करेंगे, उसके बाद रिमूव कर देंगे. आई वॉन्ट टू मेक अ वेरी थिकर मार्कर एंड आई वॉन्ट टू लेबल आउट दिस फर्स्ट. एकदम रफ डिमार्केशन में ले जा रहे हैं, डोंट वरी. अभी हम इसको ऐसे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट, ये जो एकदम डिस्टॉर्टेड इन्वर्टेड ट्रायंगल आपको बनाकर दिखा दिया, पर्पसफुली कुछ कंट्रीज को अवॉइड करने के लिए इसको डिस्टॉर्ट करा है. लाइक हंगरी को हम बाय डिफॉल्ट अवॉइड करना चाहते हैं. इसको बोलते हैं बाल्कन पेनिनसुला. Balkan Peninsula becomes the third peninsula that you see in southern part of Europe.
ये था आपका आइबेरियन पेनिनसुला, ये आपको बता दिया एपनीज पेनिनसुला। सो ऑटोमेटिकली अब आपके पास आ गया बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला, जब आप एपनीज पेनिनसुला की बात करते हो तो यू आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट इटली, ऑफ कोर्स वेटिकन। व्हेन यू टॉक अबाउट आइबेरियन, यू आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट स्पेन एंड पोर्टुगल, ऑफ कोर्स यू आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल कंट्री वी टॉक्ड अबाउट एंडोरा। छोड़ सकते हैं, बहुत छोटा सा है, बट यू नेवर नो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वही डिमार्केशन में आ जाए। सो प्रोमिनेंटली यस, स्पेन एंड पोर्टुगल। जब हम बाल्कन की बात करते हैं, इट्स मोज़ैक ऑफ कंट्रीज, तो बाल्कन पेनिनसुला को यहां पर डिमार्केटेड रहने देते हैं। लेट अस क्विकली गेट ऑन टू दी अनदर मैप टू यूज अप दी लोकेशन, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ दिखाई दे। बहुत सारी कंट्रीज हैं, ध्यान से देखो। अब इन कंट्रीज को जज करने के लिए पिक आउट करते हैं, सबसे पहले टिक कर रहे हैं कंट्रीज को। सो आई एम आस्किंग यू टू टेक अप स्लोवेनिया, विच यू कैन सी इज राइट हियर। स्लोवेनिया, क्रोशिया नंबर 2, बोस्निया हर्जेगोविना नंबर 3, Montenegro number 4. I hope you are noticing it. Serbia number 5. अभी कोसोवो के बारे में बात करें, and Macedonia number 6. Repeating them, नाम आसान हो जाएंगे. When I talk about these 6 countries, we are taking them to be the breakaway countries of former Yugoslavia. अब इसमें जो कोसोवो का स्टैंड है वो आप यहां ध्यान से देख रहे हो। Kosovo is has been the part of Serbia. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लेकर बहुत सारी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इसकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करती है, रशिया नहीं करती है, एंड दैट इज द रीजन वी आर हैविंग इट्स पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज को काउंट कर ले तो 7. सो अर्त्सवाइल यूगोस्लाविया 6 + 1 ब्रेक अवे कंट्रीज +1 रखो कोसोवो को सेपरेट मेंशन के लिए। इसके बाद अगर आपको इस एरिया को जज करना है तो कम्स इन अल्बेनिया, देन कम्स इन ग्रीस, बुल्गारिया एंड रोमेनिया। मेरे ख्याल से काम आसान हो गया। What are the countries of Balkan Peninsula? The countries of Balkan Peninsula includes breakaway countries of former Yugoslavia, including Kosovo. तो 6 + 1 करके रिवाइज कर लेना। Greece, Romania and Bulgaria. I have to take up the references of some of the important domain. वो रिविजन में बहुत आराम से आ जाना चाहिए। Strait of Otranto is separating Italy from Albania. I think it becomes easier. एड्रियाटिक सी का अगर वेस्टर्न शोर इटली है तो ईस्टर्न शोर क्रोशिया है। इस तरह का रिवीजन आएगा तो बहुत आराम से चीजें याद रहेंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी सॉल्व होगा and you will be in the position of resolving out many other things which comes up in the domain of the account that comes up as a location कि भाई I'm Mediterranean climate, do I have shoreline and etc. अच्छा, if I have to take the details of some of these countries which are significant, तो सबसे पहले ग्रीस की बात करते हैं, उसके बाद फिर से एक बड़ा इंटरनेशनल रिवर के बारे में बात करना शुरू करेंगे। व्हाट आई हैव टू टॉक अबाउट ग्रीस इज दिस कि आप जब ये पेनिनसुला की बात करते हो, आपके स्कूल एटलस में बना हुआ है पेनोपोलोसिस पेनिनसुला एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ एथेंस। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बट लेस रिकॉग्नाइज्ड कनाल है, इसका नाम है कोरिंथ कनाल। कोरिंथ कनाल इज दैट ड्रैग्ड कनाल which has made Peloponnesus Peninsula an island today. तो ग्रीस के साथ आप ये कन्वेंशनल डिमार्केशन को एसोसिएट कर सकते हैं। When I take up the reference of Greece, we identify Mount Olympus to be its highest peak. बड़ा कन्वेंशनल सा पॉइंट, I don't want to take that into account. इस मैप को सेलेक्ट करने का रीजन ये है, बहुत ध्यान से देखेंगे, हम आपको एक इंपॉर्टेंट कंटेम्पररी मैप भी डिफाइन कराएंगे। बिफोर आई आस्क यू टू सी इट, I want all of us to be familiar with Turkey. टर्की का पूरा डोमेन तो हम स्टडी करेंगे when we'll land on to Asia, because Turkey is also country of 2 continents. हम सबसे पहले अपने आप को स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। नंबर 1, this is Turkish territory of Asia. इसके बियॉन्ड नहीं। This is Sea of Marmara.
this is European part of Turkey. Bosphorus Strait आपको दिखाई दे रहा है. And here I want to mark and I want to write it here. It is called Dardanelles Strait. तो आप बहुत ध्यान से नोटिस कर लें and judge कर लें. That Istanbul is that part of Turkey which belongs to Europe, separated from what has been the conventional name Asia Minor. Asia Minor, that is mainland of Turkey in Asia, to Istanbul via Sea of Marmara. तो ये तो हो गया आपका Sea of Marmara. I have just made it with a dotted line. Sea of Marmara को आप Black Sea से connect करते हो by Strait of Bosphorus, and here you have Istanbul, and you connect Sea of Marmara to, this is Aegean Sea, name is written here, I don't want to write it again, by Dardanelles Strait. तो ये एक important domain judge करें. And after this, please give yourself the understanding of this location. हम आपको बहुत important contemporary edge पर लेकर जा रहे हैं. Now what you have to notice in this map, be very clear. ये आपको same color के spots दिखाई दे रहे हैं. These all are Greece islands, as you can notice it. All these islands are collectively called Aegean Islands. It includes Crete as the very big island. You can see Rhodes as a very big island that is very easily visible. अब ये Aegean Sea का जो dispute है, Aegean Sea island, इसका continental shelf and the political affiliations that are going on, I definitely don't want to get on to all that, but please see this map for a minute. हमने इसलिए separate out कर दिया ताकि आसानी से आपको समझा सके. So I am on this map. आपको हमने Aegean Sea के बारे में बता दिया. I have given you the understanding of Sea of Marmara. अब यहाँ का थोड़ा सा equations को समझने की कोशिश करते हैं. And these equations are important for us to notice. सबसे पहली चीज, I am talking about the small island called Cyprus. Cyprus को हम दो politically divided territories में demarcate करते हैं. आप Northern Cyprus करके Turkish control and Southern Cyprus करके Greece controlled Cyprus का demarcation लें. सबसे पहले तो ये लें. All these islands we all know are Aegean islands. I have talked about Athens, and you can see this Peloponnesus Peninsula, which is no longer a peninsula because of Corinth Canal. So you have seen this. Istanbul को बता दिया है Bosphorus Strait के साथ, और ये आपका Dardanelles Strait है, ये भी बता दिया. All scattered island are being demarcated as Greece island, as the color of this map is noticing. क्या dispute है, इसको समझने के लिए जरा इस map को देखो. ये रहा. The node of all controversy that we identify is very strongly related to. अब इसका demarcation लेना है और judge out करना है. I'm not overwriting it. You all can easily see that the Greek exclusive economic zone is being highlighted here with the blue color. You easily know this is Crete Island, and I have told you Rhodes Islands as an important big island of Greece. Cyprus का भी territorial stretch बता दिया कि Southern Cyprus is with the Greece control. अब इसके domain पे बहुत ध्यान से notice करेंगे. And island right here, ये है Castellerizzo. Castellerizzo Island is politically belonging to Greece as claimed by Greece. अब जरा overlap करके देखेंगे, ये सारा का सारा pink color जो आपको दिखाई दे रहा है, continental plate and Turkish exclusive economic zone according to Ankara, that is Turkey. तो जैसे ही आप इसका demarcation ले रहे हो, are you noticing? I want to use red color. ये आ गया आपका disputed domain. This is claimed by Turkey as its territory, और इसके साथ साथ आप overlap देख रहे हो of Greece exclusive economic zone. When I take up the dotted dash grayish line that is there, it is contiguous zone to the adjacent seas that has been agreed upon by the people. What has been the reason that this area have been so strongly into the tug of war for quite long now, and with every passing day the things are becoming much and more graver for this region, is the rich reserves of hydrocarbons.
So जो आपके रिविजन में आना चाहिए वो आना चाहिए the affiliations that I'm noticing between Turkey and Libya. I'll just show you a map. And the tug of war that is there between Greece and Turkey because of the Eastern Mediterranean continental shelf with hydrocarbon rich domain. There is a clear overlap that the countries are claiming in terms of their exclusive economic zone. Have a look on this. I want you to take up this one. ये बहुत क्लैरिटी से दिखा रहा है, इसलिए इस मैप को सिलेक्ट किया है. ध्यान से देखते जाइए. When I ask you to take Greece, so red line, आपको दिखाया ऑलरेडी. I'm not going anywhere else. Cyprus exclusive economic zone, Egyptian exclusive economic zone, Libyan exclusive economic zone and Greece exclusive economic zone. जरा इसमें ये वाला पॉइंट को देखिए, because Libya and Turkey are in a very strong, I want to purposefully make it black, are in very strong negotiation in facilitating the exclusive economic zone which is incorporating. ध्यान से देखते जाओ. ये वाला एरिया है जो टर्किश क्लेम है ग्रीस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर. यहीं पर आपको कैस्टिलेरिजो आइलैंड के बारे में बताया. और ये वाला टेरिटरी है जो ग्रीस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है विच इज क्लेम्ड बाय लिबिया. सो जो यहाँ पर एफिलिएशंस चल रहे हैं, maritime zone sharing Turkey Libya is oriented towards a group that is counter challenged by Greece, and I hope all of us are aware of the fact that Greece is having a very strong support coming up from European countries, including Germany, France, Italy and etc, and Libya is in a very strong support to Turkey. तो ये वाला जो पूरा एरिया है जिसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ का डिवीजन, tussle, Aegean dispute is principally correlated to the Castellarizo Island and of course the proposed maritime boundary demarcated between Libya and Turkey. तो ये वाला जो आपका proposed maritime zone है overlapping with Greece exclusive economic zone को आप दिमाग में रखेंगे. साइप्रस के जो दो डिवाइन है बहुत ही कन्वेंशनल है, आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे. I don't have as a Turkish claim on Rhode Island, but there are the islands which are very rich and Turkey claim it to be the part and parcel of their exclusive economic zone. This is important contemporary thing and you should be having the knowledge of it. Going back to my map of Europe now. When I take reference of the southern part of Europe and take up Greece with Turkey, I have got the disputes that are correlated right there with Greece, Turkey, Aegean Sea और Mediterranean Sea, Eastern Continental Shelf, आप किसी भी डोमेन पर इसको जस्टिफाई करें. Okay, now what I want to do is I want to take black marker will do. I think ये वाला बाउंड्री को थोड़ा सा हटा दें. ध्यान से देखेंगे. Be cautious. Rising from Germany, draining via Austria, drawing international boundaries Slovakia, Hungary, entering on Serbia, and then drawing international boundary between Bulgaria, Romania, touching Moldova, enters Black Sea. This is river Danube. Danube is the lengthiest river. Largest river बोला जाएगा. Lengthiest river is Danube. और जैसे ही आप Danube की इंटरनेशनल फ्लो के बारे में बात करते हो, आपको दो चीजें बिल्कुल पिकअप कर लेनी है. अपने फिजिकल मैप में देखेंगे पूरा का पूरा हंगेरियन प्लेन, नाम डिफिकल्ट नहीं है, हंगरी हो गया तो हंगेरियन प्लेन हो ही जाएगा. What is a difficult name for you to remember is Wallachia. I'm writing it here. Wallachia Plains is the plains of Danube as it is recognized in Bulgaria, Romania. ये plains जो हैं, one of the most extensively cultivated zone, principally known for maize and wheat cultivation है. तो Wallachia Plains माने क्या? Plains Danube Plain. अगर एग्जामिनर मुझे Danube Plain बोलता है तो I can still make sense with Wallachia name जो है इतना self speaking नहीं है, तो you should be aware of Wallachia Plain. When I talk about Danube River, plain of Hungary correlates with it, and when we take up the reference of these plain of Hungary, it is something that is uniquely different for the physiography of that country. In a minute, I'm going there. So Danube is also a good example of international river. After this, I want to use red color and ask you to understand
बहुत ही कन्वेंशनल डिमार्केशन है, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो स्विट्जरलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेकिया, चेक रिपब्लिक, तो ये कंट्रीज को हमने एक तरह से ग्रुप अप कर दिया रेड मार्कर की मदद से। इन सारे कंट्रीज को हम बोलते हैं अल्पाइन स्टेट्स। और अल्पाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे ऑल आर माउंटेनस। स्लोवेकिया, नॉट स्लोवेनिया, स्लोवेनिया को आपने बाल्कन स्टेट्स में काउंट कर लिया। अगर आप अपने फिजिकल मैप के साथ इसको एक पॉइंट पर ओवरलैप करें, लेट मी ओपन दिस मैप फॉर यू, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज द थिंग्स विच आई एम आस्किंग यू टू। देखो यहां जरा ध्यान से, यही वाला बेल्ट पूरा डिमार्केट आउट करा है। यहां पर आप नोटिस कर रहे हैं कार्पेथियन माउंटेन्स, यहां पर टाटरा माउंटेन्स है, दिस इज एल्प्स माउंटेन्स, आपको बता ही दिया एपनीज ऑलरेडी, ये सारे आपके बाल्कन माउंटेन्स और उसका एक्सटेंशन रोड माउंटेन्स है। ये ब्लॉक है आपका जिसको हमने डिमार्केट करा है एज अल्पाइन स्टेट। आर वी नोटिसिंग that in this alpine state we cannot miss out on, right? This is the course. ये तो दिखाई दे ही रहा है ना, ये आपका कौन सा हुआ? हंगेरियन प्लेन। तो मतलब आप हैं पूरे फिजियोग्राफिक ब्लॉक जिसको आप माउंटेनस एरिया बोलते हैं, and that is the reason it is called alpine states. Alpine name is coming from Alps, so I have got Alps here. Name is coming from बिगर वन, एनसीईआरटी भी इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देती है, कार्पेथियंस। तात्रा माउंटेन्स आर नॉट दैट स्ट्रांगली टेकन इनटू अकाउंट, बट जब आप तात्रा माउंटेन्स का रेफरेंस लेते हो ना, तो यू आर टेकिंग अप द क्लियर डिमार्केशन, भाई स्लोवेकिया के बारे में आप बात कर रहे हो एज माउंटेन। और ये हंगेरियन प्लेन काउंट तो होता है अल्पाइन स्टेट्स में, बट यू कैन इजिली सी इट्स अ डिमार्केटेड प्लेन ऑल टुगेदर। यहां पर आपको पो रिवर वैली बहुत आराम से दिखाई दे रही है। पो रिवर वैली के जो नदन पार्ट है ये वाला, इसको लोम्बार्डी प्लेन बोलते हैं, यू नेवर नो। लोम्बार्डी प्लेन्स इज आइडेंटिफाइड टू बी द पीडमोंट प्लेन्स ऑफ एल्प्स। ऐसे करके कलर कर दें, आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज। लोम्बार्डी रिवर सिस्टम के साथ है, पो से अलग रिवर है, दिस इज पो रिवर। लोम्बार्डी प्लेन वही ग्रेप्स ऑरेंजेस कल्टीवेशन के लिए बड़ा पॉपुलर है। पो रिवर वैली तो अपने आप से समझ में आ रहा है। अल्पाइन स्टेट्स, लेट मी यूज दिस मैप वन मोर टाइम। ये हुआ मेरा एपनीज, ये सॉरी आइबेरियन, ये हुआ मेरा एपनीज, ये हुआ मेरा बाल्कन। बाल्कन को डिमार्केट करने के साथ ही आपने अल्पाइन स्टेट्स को भी डिमार्केट कर लिया। अल्पाइन स्टेट्स को डिमार्केट करते समय हंगरी, हंगेरियन प्लेन, डेन्यूब रिवर का मेंशन अपने आप। I take support of Black Sea and proceed further. तो इस मैप में आप कम से कम इजीली विजुअलाइज कर ही सकते हो इस वाले ब्लॉक को, तो जरा ध्यान से देखो। आपने जज कर लिया था दिस इज माय बॉस्फोरस स्ट्रेट, सो आई जस्ट राइट इट एज BS। ये मेरा ब्लैक सी है, फिर से BS हो गया तो इसलिए पूरा नाम लिख देते हैं। And I come to another important location with the contemporary significance in the present purview. This is Strait of Kerch. Strait of Kerch को क्रीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि ये आ गया आपका क्रीमिया पेनिनसुला, जिसका कोई भी इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं है आज की डेट में। एंड वंस आई क्रॉस स्ट्रेट ऑफ कर्च, आई हैव रीच्ड दिस इज कॉल्ड सी ऑफ अजोव। अजोव सी इज मार्जिनल एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सी। क्रीमिया या कर्च पेनिनसुला वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल एग्रेशन दैट वाज शोन बाय रशिया एज यूक्रेनियन टेरिटरी एनेक्स्ड बाय रशिया। And उसके बाद फिर यूक्रेनियन वॉर, रेस्ट वी कैन इजिली से, वी कैन नॉट से इट्स हिस्ट्री बिकॉज इट इज स्टिल ऑन, बट यस इट इज द रीजन दैट वी आर हैविंग द सिग्निफिकेंस फॉर इट। ब्लैक सी के साथ जब भी आप कोई भी एक्सटेंशन या डिमार्केशन लेते हैं, तो आप में इसमें सबसे पहले तो अपने आप को रिमाइंड कराना है दैट इट इज माउथ ऑफ रिवर डेन्यूब, जो हमने आपको बता दिया इंटरनेशनल रिवर, तब हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे। It is also mouth of a very big river, बहुत बड़ी रिवर है, आप खुद से देखो इसको। This river is also international in its domain, मतलब इतना मेजर कनेक्टिविटी लेती है फ्रॉम मेजर पार्ट ऑफ ब्रेक अवे कंट्रीज ऑफ फॉर्मर USSR, बेलारूस एंड यूक्रेन स्पेसिफिकली। इस रिवर का नाम है रिवर निस्टर नीपर। पहले हमने नीपर मार्क करा, नीपर को मार्क कर देते।
दिस इज माई रिवर नीपर, डी साइलेंट है, NIEPER। और जब इस रिवर की बात करें, ये जरूरी है इसलिए हाईलाइट करेंगे, इसको आप बोलते हैं रिवर डॉन। और जब इस रिवर की बात करें, अगेन कुछ कुछ से रिजर्वॉयर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो फटाफट अपने मैप में देख लो। दीज आर वेरी बिग रिवर्स एंड आई थिंक इट इज अवेलेबल इन एवरी ऑफ द स्कूल एटलसेस। ये है वोल्गा। अच्छा, वोल्गा को आप लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप कहते हैं। आप जब डेन्यूब की बात करते हो तो लॉन्गेस्ट रिवर का टैग देते हो उसको। रिवर नीपर हैज इट्स माउथ इन ब्लैक सी। कार्पेथियन को अगर रिमूव कर दें, नाम को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें, तो जो दो रिवर्स आपस में जनरली नेम चेंज कर देती हैं, वो आप क्लैरिटी के साथ समझ पाओगे। व्हेन आई टॉक अबाउट रिवर नीपर एंड रिवर निस्टर, तो आपको ये डिमार्केशन बड़े आराम से मिलता है। देखो, ध्यान से देखते जाओ। दिस इज रिवर, अगेन डी इज साइलेंट। यूक्रेनियन रिवर्स, निस्टर, नीपर, डॉन। डॉन इंटरनेशनल रिवर हो जाती है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। नीपर इंटरनेशनल रिवर हो जाती है बिटवीन बेलारूस एंड यूक्रेन। अच्छा, डॉन का माउथ जो है वो सी ऑफ अजोव है। अभी आपका पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर के वजह से ये सारी रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। इस रिवर का नाम है दोनेत्स्क। Normally, we don't take into consideration the tributaries at the scale of the study, but it is important here. अच्छा, अब हमें आपको सिर्फ दो चीजें और यहाँ बतानी है टू कंप्लीट आउट विद रिवर। पहली चीज ये बता देते हैं, इट इज कॉल्ड डॉन वोल्गा शिपिंग कनाल। और दूसरी चीज ये बता देते हैं दैट आई हैव लोकेशन ऑफ मॉस्को समवेयर हियर, एंड ये मेरा मॉस्को वोल्गा कनाल है। Basically, these are the important links, that is the prominent economic benefit that Russia is having right now. So हमने बिना ज्यादा एफर्ट्स के ब्लैक सी का रेफरेंस लेकर यूक्रेन में एंट्री मारी, और यूक्रेन के साथ हम नेबरिंग रशिया के बारे में बहुत आराम से बात कर पाए। बट गेटिंग ऑन टू द पॉलिटिकल मैप, द थिंग्स विल बिकम मच मोर इजियर। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने कन्वेंशनल मैप पर जाते हैं और बहुत ध्यान से देखते जाओ। हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो I don't think it will create much trouble. I think this scale will be better for us to view. अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, I just remove this. नीपर बता दिया, निस्टर बता दिया, so I don't want to highlight it again. अब ध्यान से देखो जो प्लेसेस आपके न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड रहे, खार्किव, लुगान्स्क, ये सब है ना, with the reference of the present war. डॉन आपको बता दिया था इंटरनेशनल फ्लो है, एंड दिस इज रिवर वोल्गा, दिस इज ऑल्सो डन। सो यूक्रेनियन क्रीमिया पेनिनसुला, द एंटायर डोनेट्स्क बेसिन विद खार्किव, लुगान्स्क एंड डोनेट्स्क, द एरिया ऑफ द मेजर कंटेंशन एंड वॉर दैट इज अप्लाइड विद दिस रीजन। निस्टर, नीपर रिवर के बारे में बताया था, बेलारूस से मार्क्स अप इट्स एक्सटेंशन। अब हम इसी डोमेन पर यहां पर पिकअप करते हैं एक और डिमार्केशन that relates to this particular continent. Before that, a very important reminder, जब आप ब्लैक सी के बारे में बात करेंगे तो आप उसको सी ऑफ अजोव से इंटर रिलेट नहीं करोगे। इन सेंस इज दैट, मान लीजिए मेरे को कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिला, जूम अप कर रहे हैं, that consider the following statement and which of them are correct. Don river has got mouth in Black Sea. अब इसमें आपको बहुत कॉशियसली फेस वैल्यू पर तो गलत हो गया, क्योंकि डॉन रिवर का माउथ तो सी ऑफ अजोव में है। बट इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है दैट इफ यू हैव A, B, C, D एंड यू हैव टू सेलेक्ट एनीवन दैट इज करेक्ट, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। बट इफ इट इज 1 2 3 4 स्टेटमेंट एंड यू हैव बीन गिवन कोड, व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट, 1 2 and 3, 1 2 2 3, सो बी वेरी कॉशियस विद द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। वहां पर अगर आपको डॉन रिवर एज माउथ इन ब्लैक सी लिखा हुआ है और सारे करेक्ट आंसर मैचअप कर रहे हैं, तो आपको सी ऑफ अजोव को एक्सटेंशन ऑफ ब्लैक सी जज करके अपने आंसर को जस्टिफाई करना पड़ेगा एज करेक्ट। तो बी वेरी कॉशियस विद इट। बिफोर आई टेक यू टू द ब्रेकअवे कंट्रीज ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर फर्दर, एक बार डिमार्केट कर लेते हैं दैट टू कंट्रीज व्हिच डू नॉट फॉल इनटू दिस ब्लॉक ऑफ सेग्रीगेटिव ग्रुप्स, छोड़ नहीं सकते उनको बिल्कुल भी, आर जर्मनी एंड पोलैंड along with low countries। एक मेंशन तो उनका आ ही गया है, बाकी को डिमार्केट करते हैं। तो ट्रेसिंग देम वन बाय वन, बहुत ध्यान से देखते जाओ, यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट।
तो राइन रिवर के रेफरेंस पर ही एंटर करते हैं नीदरलैंड्स, बेल्जियम अलोंग विद अ छोटा सा कंट्री लग्जमबर्ग, आपको आप लो कंट्रीज बोलते हो। इनका जो एवरेज एलिवेशन है वो एट नियर मीन सी लेवल है। बोथ एम्स्टरडैम एंड रॉटरडैम आर पोर्ट सिटीज। रॉटरडैम तो रिवर राइन के साथ जा रहा है तो दैट गोज वेरी इजी। एम्स्टरडैम को हम नॉर्मली नहीं बिलीव करते कि वो पोर्ट सिटी है। ध्यान से देखो, रॉटरडैम ये रहा रिवर राइन पर, एंड एम्स्टरडैम इज अ पोर्ट ऑन दिस लेक विच इज कॉल्ड इजसेल लेक। इजसेल लेक अभी जितने भी लेक हमारे राडार पर आए उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इजसेल लेक इज अ लगून लेक, वी कैन इजिली नोटिस। और ये सारे आइलैंड्स जिसको आप नोटिस कर रहे हो, इफ आई जस्ट रिमूव दिस नेम अगेन हेयर ताकि आपको नाम दिखाई दे, फ्रिजियान आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये फ्रिजियान आइलैंड जो है ये बिल्कुल वो बार डिपॉजिट्स हैं जिनको हम ऑफशोर बार कहते हैं, एंड दैट इज द रीजन द इजसेल लेक मेक्स द लगून लेक, एंड एम्स्टरडैम को बनाता है पोर्ट सिटी। रॉटरडैम बाय डिफॉल्ट पोर्ट सिटी है। बेल्जियम का जो ब्रुसेल्स है दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ अ पोर्ट सिटी। सो यू कैन सी द लो कंट्रीज, लग्जमबर्ग लैंडलॉक्ड है, यू कैन इजिली नोटिस इट। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत छोटे साइज के कंट्रीज लाइक एंडोरा और लग्जमबर्ग इग्नोर कर दिए जाते हैं, बट यू नेवर नो, एग्जामिनर उसी इग्नोर्ड आइटम को आपको क्वेश्चन में दे दे, तो ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। लो कंट्रीज 3। राइन का जो इंटरनेशनल स्प्रेड है वो भी जस्टिफाइड हो गया। जर्मनी मुझे ज्यादा कुछ सेपरेटली जस्टिफाई करने दे नहीं रही है, तो नंबर 1 डेन्यूब रिवर का सोर्स है। नंबर 2 आई कैन सी रिवर वेसर, मैप में दिया हुआ नहीं है, मार्क कर दे रहे हैं। ब्रेमेन इज द सिटी दैट इज लोकेटेड ऑन इट। Then I have river Elbe, you can easily see. Hamburg is again the riverine port city that you identify here. Elbe river भी इंटरनेशनल स्प्रेड की है, आपको दिख रहा है। चेक रिपब्लिक आ गया आपके रेफरेंस में, और चेक रिपब्लिक के साथ आप बाय डिफॉल्ट अल्पाइन स्टेट्स का टैग डालते हैं, तो एल्ब इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल रिवर दैट वी कैन इजिली अप्लाई। अच्छा, अब जो इंटरनेशनल रिवर ड्रॉइंग अ डिफाइंड इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बात आता है, दैट इज रिवर ओडर। तो रिवर ओडर जो है ना वो तातरा माउंटेन से राइज करती है, एंड इट ड्रॉज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमार्केशन है जिसको आपको ले लेना चाहिए, बिकॉज व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ ओडर रिवर we are taking it into consideration of the tributaries demarcating the international boundary as well. So Oder is rising from Tatara and draws the international boundary between Poland and Germany. Poland की एक और बहुत big river है, उसका rising भी तातरा mountain से ही है, and it is draining right here in Baltic Sea. तो Poland। अच्छा, एक फेस वैल्यू पर देखा जाए, रिपीट कर दे रहे हैं, विस्तुला ओडर इन पोलैंड, इंटरनेशनली स्प्रेडिंग रिवर ओडर, इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही है। विस्तुला इज प्रिसाइजली नॉट एन इंटरनेशनल रिवर, राइज करती है तातरा माउंटेन से चेक रिपब्लिक, बट इट इज हैविंग इट्स मैक्सिमम मेजर फ्लो 99.99% फ्लो इन पोलैंड, तो इट इज नॉट गिवन द टैग ऑफ एन इंटरनेशनल रिवर। अच्छा, अब यहां पर 2 चीजें प्रूफ करना है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये पूरा पार्ट को हम जुटलैंड पेनिनसुला बोलते हैं, ये पूरा जुटलैंड पेनिनसुला है। तो एक मिथ है, उस मिथ को शेड कर दो। जुटलैंड पेनिनसुला प्रिंसिपली गोस टू डेनमार्क, इट हैज इट्स एक्सटेंशन इन जर्मनी, टिक कर लीजिए इसको। और दूसरी चीज नोटिस करेंगे, एंड आई वांट टू यूज अ डिफरेंट कलर फॉर श्योर, ये मेरा इंटरनेशनल बाउंड्री है पोलैंड का। अगर आप जनरल पर्पस में पोलैंड और रशिया की लोकेशन देखोगे तो आप सीधा बोलोगे पोलैंड हैज नथिंग टू डू विद लैंड फ्रंटियर विद रशिया। आंसर इज इनकरेक्ट। पोलैंड शेयर्स लैंड फ्रंटियर विद रशिया बिकॉज along the shoreline of Baltic Sea, the Russian Federation has got the territory called Kaliningrad. I hope all of us have noticed it. You have to be very clear with such type of questions when you are preparing for multiple choice test paper. So Poland do share international boundary land front with Russia, Kaliningrad. अच्छा, जैसे ही Kaliningrad कर लिया, I want to remove all these first. बता दिया था आपको with the demarcation of water bodies.
अब जरा ध्यान से देखेंगे, आई एम मेकिंग माई मार्कर थिकर। जैसे ही आप ये 3 ब्रेक अवे कंट्रीज ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर के बारे में बात करते हैं, लिथुवेनिया, लाथविया, एस्टोनिया, इनका शोरलाइन आया बाल्टिक सी से, तो इनको आप बड़े आराम से बाल्टिक स्टेट्स बोलते हो, ठीक है। बाल्टिक स्टेट्स आर 3 ओनली, बट इफ द क्वेश्चन कम्स इन, आई एम राइटिंग इट है, बाल्टिक स्टेट्स, तो बाल्टिक स्टेट्स तो 3 ही हुए, नो वन इज डिनाइंग इट। Technically, Baltic states are the 3 breakaway countries of former USSR which are not the members of CIS. And when I take up the reference of not the member of CIS, और जो जहां कहा जाता है कि it is the nutshell domain of Russia believing कि उसका जो dominance है among the breakaway countries of USSR में decline हो रहा है, उसी डोमेन में यूक्रेन और मोल्दोवा को जो EU का एंट्री पास मिल गया, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो मोल्दोवा को भी अब यूरोपियन कर रहे हैं। पहले ध्यान से सुनो, बाल्टिक स्टेट इज 3 आउट ऑफ 15 ब्रेकअवे कंट्रीज जो CIS के मेंबर नहीं है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के मेंबर नहीं है, दे आर मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। पहला पॉइंट तो ये डिमार्केट कर लो। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है, इफ द क्वेश्चन कम्स इन, हाउ मेनी ब्रेकअवे कंट्रीज ऑफ फॉर्मर USSR हैव गॉट देयर शोरलाइन विद बाल्टिक सी, तो रशिया आएगा, रशिया को नहीं छोड़ सकते। कालिनिनग्राड आ गया। जैसे ही आप इस पॉइंट को पिकअप करते हो, पोलैंड के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री का जस्टिफिकेशन भी हो गया। सो बाल्टिक स्टेट को ध्यान में रखेंगे। जब आप बाल्टिक स्टेट को ध्यान में रख रहे हैं तो अपने दिमाग में डालोगे, गल्फ ऑफ रीगा आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो आई एम नॉट गेटिंग ऑन टू दैट। अब ध्यान से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक फीचर्स को। सो उसके लिए क्या करें, मार्कर को थोड़ा थिन करते हैं, एंड आई एम जूमिंग अप दिस पार्ट। Baltic states are associated with, number 1, ये दिख रहा है आपको यहां, right there at international boundary between Russia and Estonia, one of the big lakes in Eastern Europe, Lake Peipus. Lake Peipus भी एक fresh water lake है, largely rain fed. It is identified to be at international spread, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी चीज जो आपको नोटिस करनी चाहिए वो है इंटरनेशनल रिवर। अगेन आई एम ट्राइंग टू बी एज अप्रोप्रिएट इन क्विकली शेडिंग इट अप। रीगा, द कैपिटल सिटी ऑफ लाथविया एंड द पोर्ट सिटी ऑन गल्फ ऑफ रीगा। याद आ रहा है ना, इसको गल्फ ऑफ रीगा बोलते हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड नहीं बोलोगे, गल्फ ऑफ रीगा बोलते हैं। दिस सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ Western Dvina River. Yeah, Western Dvina River. I hope you are noticing it. And when I take reference of Lithuania, ये जो एक छोटी सी रिवर दिखाई दे रही है, again it is an international river, so I cannot miss it out. तो यहाँ पर फटाफट से हाईलाइट कर देते हैं। बेलारूस से जा रही है एंड लिथुवेनिया, ध्यान से देखो इंटरनेशनल स्प्रेड है, रशिया लिथुवेनिया की बाउंड्री भी बना रही है, इसको बोलते हैं रिवर निमन। ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। Former USSR countries pushing to get into European Union, get the membership of NATO, somewhere towards minimizing their vulnerability against aggressive Russia. तो ये सारी कंट्रीज कहीं थोड़ी सी प्रोमिनेंट हैं, इन पर एक रिविजन लेते समय डिमार्केट आउट कर देना थिंग्स दैट विल बी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब एक और पॉइंट बता दें बिफोर आई रिपीट सम ऑफ द थिंग्स। आपको ऑलरेडी नीपर रिवर बता दिया है। नाउ एज वी आर नोटिसिंग बेलारूस से कितनी सारी रिवर्स ड्रेन आउट कर रही हैं, प्रिपेट को डिमार्केट करना जरूरी है, क्योंकि अपने फिजिकल मैप पर देख लेना, बेलारूस इज मेजरली प्रिपेट मार्शेस एंड माइंड इट, बेलारूस इज ऑल्सो अ ब्रेकअवे कंट्री ऑफ फॉर्मर USSR. Belarus is also a breakaway country of former USSR, so is Moldova. Belarus and Moldova are the breakaway countries of former USSR. ठीक हो गया? अच्छा, मोल्दोवा और यूक्रेन के साथ हम बहुत क्लियरली जस्टिफाई कर सकते हैं कोवेटेड स्टेटस टू यूरोपियन यूनियन। मोल्दोवा को टिक कर दिया और यूक्रेन को टिक कर दिया। That means they have been given the entry pass to be European Union. Of course, if you read out on the modalities, कम से कम एक डेकेड तो लगी जाएगा to get into the former membership of European Union. But Moldova and Ukraine comes into that list now. So remind yourself,
breakaway country of former USSR, Estonia, Latvia, Lithuania, Baltic states. Lithuania shares a land frontier with Russia. Poland shares a land frontier with Russia. Kaliningrad, रशिया का अदरवाइज जो मेन लैंड है उसका अब शोर लाइन ना तो इंटरनेशनल बाउंड्री ना तो लिथुवेनिया के साथ टच करता है ना पोलैंड के साथ टच करता है. बेलारूस, द ब्रेक अवे कंट्री ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, हैव सो मेनी इंटरनेशनल रिवर्स रिलेटेड टू इट. ना वेस्टर्न दिवना भी है, निमन भी है, एक्सक्यूज मी, नीपर भी है, एंड प्रिपेट. प्रिपेट मार्शेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन. When I take reference of the breakaway countries of former USSR, जो सबसे dominant country है, largest country of the world है रशिया, उसके बारे में बात डेफिनेटली बनती है. बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी जज कर चुके हैं इसके बारे में. एक जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि रशिया कैन टेक मी टू एशिया, इसलिए हमने रशिया के बारे में ज्यादा डिमार्केशन अभी लिया नहीं. एक बार पहले इस मैप को देखो. Lake Onega, Lake Ladoga are the freshwater natural kettle lakes, जैसा कल बात करा था इनारी लेक के बारे में, वैनन वाटन लेक ऑफ स्वीडन के बारे में, बिल्कुल वैसे ही दे आर फ्रेश वाटर अब्लेडेड केटल लेक. नदन दिवना आपको अपने आप जस्टिफिकेशन दे रहा है वेस्टर्न दिवना का. द टू रिवर्स नदन इज इन रशिया, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट वेस्टर्न दिवना वी हैव टेकन अप रीगा लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इट. So ये दोनों रिवर्स आपके राडार पर आ गए. Rybinsk is the reservoir on river Volga. It's man-made. It's not a natural thing. Now you have to understand कि जब आप पिचोरा रिवर के बारे में बात कर रहे हो, it is with very rich coal reserves. जब आप वोल्गा रिवर के बारे में बात कर रहे हो, आप कहते हो लार्जेस्ट वाटर वॉल्यूम रिवर. और जैसे ही आप यूरल रिवर को, कैस्पियन सी, इसके बारे में बात करेंगे कल जब हम एशिया में एंटर करेंगे, अभी नहीं. यूरल माउंटेन, यूरल रिवर एंड कैस्पियन सी ड्रॉज बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया. इसलिए यूरल के वेस्ट में आप यूरोपियन रशिया में हैं, यूरल के ईस्ट में आप एशियाटिक रशिया में एंटर कर जाओगे. एंड एडेड टू इट ऑन द सेम मैप कोला पेनिनसुला, हम आपको कई दिनों से बताते हुए आ रहे हैं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करने के लिए बोलते हैं इस फीचर को. इसको छोड़ना एडवाइजेबल नहीं है. इसका नाम है लैपलैंड प्लाट्यू. कैन यू सी दैट वेरी क्लियरली इन योर स्कूल एटलसेस? लैपलैंड के साथ एक बड़ा यूनिक डेजिग्नेशन है, मतलब जैसे इंडिया में छोटा नागपुर प्लाट्यू है, वैसे उस तरह का एंशिएंट प्लाट्यू है ये. इट इज दैट प्लाट्यू ऑफ द वर्ल्ड दैट एक्सटेंड्स इन 4 कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया. लैपलैंड काफी रिच है. स्वीडिश आयरन ओर रिजर्व लैपलैंड के साथ ही एसोसिएटेड है. इसका मेजर आइडेंटिफिएबल पार्ट रशिया में है, बट इट इज द प्लाट्यू दैट एक्सटेंड्स बिटवीन 4 कंट्रीज. तो एक अपने आप में यूनिकनेस आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं. मैक्सिमम ऑफ यूरोपियन रशिया इज Volga river basin. You can easily identify it, and it relates to the big set of river systems that we have already learned. You are aware of White Sea, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं है. हमने आर्कटिक ओशन आपको ऑलरेडी बता दिया है, so you can take up the reference and demarcation of the things related there. When I talk about Russia, as I take up the reference of Russia and river Volga, इसमें 2 चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए. तो I just zoom it up. I have got a thicker marker with me. So Rybinsk reservoir is not the only reservoir that you take up with the river Volga. Kubashev reservoir बहुत important है. Volgograd reservoir बहुत important है. और ये जो reservoir है ये डॉन पर है, इसको बोलते हैं सेमिलियांस्क reservoir. ये कंट्री आज की डेट में बहुत सिग्निफिकेंट है, तो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए. अच्छा, जैसे ही हम, दिस इज द रिजर्वॉयर, इफ आई जस्ट राइट इट्स नेम विद ब्लैक थिनर मार्कर ताकि ध्यान से दिखाई दे, इट इज कुबशेव, YSHEV. अच्छा, इसी में आप जरा ध्यान से देखेंगे, आई मेक माई मार्कर थिक अगेन, ये ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है रिवर कामा. क्यों बताना जरूरी है, ध्यान से देख लो. आई एम राइटिंग इट विद अ थिनर मार्कर. पिचोरा इज नोन फॉर कोल एंड कामा इज नोन फॉर क्रूड ऑयल. Russia is one of the leading producers of crude oil in world today.
रशिया का जो जियोपॉलिटिकल डोमेन है ना आज के डेट में, इट इज प्रिंसिपली रिलेटेड टू ऑल दीज फैक्टर. तो यूरल माउंटेन इज दैट ओल्ड फोल्ड माउंटेन विच इज वेरी रिच विद आयरन, मैंगनीज एक्सेट्रा. पिचोरा बेसिन कोल के लिए जाना जाता है, और कामा रिवर जो वोल्गा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इट इज नोन फॉर ऑयल. इसलिए अगर आप कामा बेसिन के सिटीज को नोटिस करेंगे, उनको आप पेट्रोकेमिकल सिटीज ऑफ रशिया बोलते हैं, एज द सिटी कॉल्ड पर्म. तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स डोमेन है. इट्स अ मिथ दैट व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ रशिया, पाइपलाइन के बारे में आपको कल बता दिया था, नॉर्ड पाइपलाइन. सो इफ यू हैव मिस्ड दैट क्लास, डू सी द वीडियो ऑन द यूट्यूब. जब हम बात करते हैं रशिया के एनर्जी रिसोर्सेस की, so it is something which you have to understand with Ural, Pichora and Kama river also. बाकी तो domain by default is related to rich fertile plains and the agricultural domain identified. Russia, the largest country of world in Eastern Europe, is country of two continents, and we have to take these two continents into our study as we proceed next to our the continent of Asia altogether. अच्छा, इस पर बस एक पॉइंट पर क्लोज डाउन करेंगे आज की क्लास को. फिजिकल मैप को जरा ध्यान से देखें. आज का रेफरेंस के साथ एसोसिएट करता है तो मेंशन कर देते हैं. ये मेरा माउंटेन रेंज है. इस माउंटेन रेंज का नाम है काउकसस. काउकसस माउंटेन में जो हाईएस्ट पीक है रफली है, उसका नाम है माउंट एल्ब्रस. माउंट एल्ब्रस की हाइट जो है वो मोर देन 5600 मीटर्स है. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होते हैं. यहां पर हमने आपको बताया था एल्प्स, स्विट्जरलैंड, इटली, इंटरनेशनल बाउंड्री. स्विट्जरलैंड में जो पीक है एल्प्स की, उसको कहते हैं माउंट ब्लैंक. एक रफ लोकेशन पर मार्क कर दे रहे हैं, जल्दी से आप देख लो. माउंट ब्लैंक की जो पीक है वो is more than 4800 मीटर. अच्छा, अब इसमें ना एक डिबेट चला आता है. अब इस डिबेट को जरा ध्यान से समझो. आई एम क्लोजिंग डाउन द क्लास ऑन दिस. Caucasus, I read NCERT, which are the principal mountain ranges of alpine cordilleras. So which are the principal mountain ranges of alpine cordilleras? It is Pyrenees, it is Alps, it is Carpathian, it is Apennines, it is Balkan and it is Caucasus. इनको आप prominent ranges बोलते हो. अच्छा, जब अल्पाइन के प्रोमिनेंट रेंजेस की आप बात कर रहे हैं तो काउकसस को काउंट कर रहे हैं. अल्पाइन रेंजेस आर आइडेंटिफाइड टू बी यूरोपियन माउंटेन्स. ठीक है. काउकसस इज द एक्सटेंशन ऑफ अल्पाइन रेंज. डन. काउकसस इज वेरी वेल कन्फाइंड वेस्ट ऑफ कैस्पियन, which is demarcated to be the boundary between Europe and Asia. कैस्पियन के ईस्ट में एशिया होना चाहिए, वेस्ट में यूरोप है. डन अगेन. Mount Elbrus thus is considered to be the tallest peak of Europe. Done. Mount Blanc is highest peak of Alps, not Alpine Cordillera. That is also done. But अब इसमें समझने वाली बात ये है कि Caucasus mountains के नाम पर the Caucasus states are Asian states. तो physical domain पर, अब इसके बारे में कल बात करेंगे डिटेल्स में. फिजिकल डोमेन पर काउकसस माउंटेन्स यूरोप के हैं. काउकसस माउंटेन का हाईएस्ट पीक एल्ब्रस यूरोपियन अल्पाइन कॉर्डिलेरास का हाईएस्ट पीक माना जाता है. पर जो काउकसस स्टेट्स हैं, अजरबैजान, आर्मीनिया एंड जॉर्जिया आर कंसिडर्ड टू बी एशियन कंट्रीज. अब यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपने लास्ट कॉन्टिनेंट की स्टडी को, जिसका नाम है एशिया. I hope your revision for the map items are getting easily fulfilled by these sessions. That is totally oriented towards helping you out with your track of revision of these things. अच्छा, जैसे हम कल बात करेंगे, कुछ factual details add कर सकते हैं, provided we are aware of the location. So we do have some facts that correlates with combining land and water, so we'll be taking that into account. Bye bye for today. See you tomorrow.